Good morning to all. So in today's lecture, we have to discuss requirement elicitation techniques. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था व्हाट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. So requirement elicitation is the process which is used to find out the requirement for an intended software. Intended software means the software which we have to develop. So whatever requirement methodologies, whatever communication we can have for the development of a particular software, for the development or for the expectation from a software. So that is requirement elicitation, and this can be achieved by a regular communication with client, by a regular communication with end client, by a regular communication with all stakeholders. Stakeholders means all the people who are directly or indirectly involved in the development process, or all the people whose favor is included in that particular development model or in that particular project. So that is requirement elicitation. Now there are so many techniques so that we can achieve this elicitation, requirement elicitation. So we will discuss all these techniques. Before that, we should know what are the phases in requirement elicitation process. So there are total number of 4 phases. First is requirement gathering, second is requirement organization, third is negotiation and discussion, and fourth is requirement specification. So requirement gathering is that we are collecting requirement, we are we are analyzing the requirement, that is requirement gathering. Requirement organizing means ki we are organizing our requirement as per priority. We are organizing our requirement as per डेवलपमेंट नीड. हमें किस ऑर्डर में किसको डेवलप करना है, किस ऑर्डर और किस पर्टिकुलर फेज की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस पर्टिकुलर फेज की प्रायोरिटी कम है, किसको पहले डेवलप करना है, किसको बाद में डेवलप करना है. ऑल द थिंग्स shall be organized. This is requirement organization. Negotiation and discussion. When we organize our requirement, then we have a meeting with client and all the peoples or all the stakeholders who are involved in this activity. So we put all the requirements which we have made and ask, is there any change in this requirement, is there any increment in this requirement, is there something has to be removed from this requirement. That is negotiation. We will add, we will remove something as per discussion with client or end client. This is requirement negotiation and discussion. Requirement specification. So what is requirement specification? Specification means some functional requirement or some non-functional requirement. So specification decides that what will be designed, what will be developed, or how will be developed that particular thing. That is requirement specification. So we are seeing here the developers
discuss with the client and end users and know their expectations from the software. In it, developer client से end user से डिस्कस करता है और उसकी सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है उसको फाइंड आउट करता है. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट को उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, उनकी अर्जेंसी के बेसिस पे, उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे या डेवलपमेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करता है. निगोशिएशन एंड डिस्कशन. देखिए देयर आर सो मेनी पीपल्स. आपका क्लाइंट है, एंड क्लाइंट है और अदर स्टेक होल्डर्स हैं, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बट इन सम केसेज कुछ रिक्वायरमेंट कॉमन हो सकती हैं. देयर मे बी सम कॉमन रिक्वायरमेंट्स. तो उन रिक्वायरमेंट्स को फिल्टर आउट करना और उन रिक्वायरमेंट का आंसर तो दैट मीन सोल्यूशन तो एक ही होगा. तो उन रिक्वायरमेंट को अरेंज करना कि जिससे कि रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है वो क्या हो जाए, सॉर्टेड हो जाए, रिक्वायरमेंट की लिस्ट फिल्टर हो जाए, रिक्वायरमेंट की लिस्ट मिनिमाइज हो जाए. और फर्दर अगर किसी रिक्वायरमेंट को और ऐड करना है तो उसको ऐड किया जाएगा. फर्दर किसी रिक्वायरमेंट को रिमूव करना है या कोई अननेसेसरी की रिक्वायरमेंट है तो उसको रिमूव किया जाएगा. सो दिस इज कि निगोशिएशन करने के लिए हम डिस्कशन करते हैं किससे, क्लाइंट से, एंड क्लाइंट से या स्टेक होल्डर्स जो भी उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में है. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है किसका, फंक्शनल रिक्वायरमेंट का और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का. एक हम डिटेल में सारी रिक्वायरमेंट को, फंक्शनल मींस क्या हम डेवलप कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल मींस कैसे हम डेवलप करेंगे, तो इनका एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लेते हैं. दिस इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एंड आई थिंक ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने ऑरली डिस्कस किया था, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस को. फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को स्पेसिफाई करती है. बिहेवियर मींस कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन है. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो क्वालिटी से रिलेटेड रहती है. तो क्वालिटी में जब हम बात करते हैं तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम हो गई, पोर्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम हो गई, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम हो गई, ये सब आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. जैसे एफिशिएंसी मींस वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मींस कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस योर सिस्टम देन दैट सिस्टम शुड बी अवेलेबल. वो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए आपको सर्विस देने के लिए, दैट इज अवेलेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कि इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस तो इजीली उन चेंजेस को वो अडॉप्ट करे, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. यूजेबिलिटी कि यूजर उसको कैसे यूज करेगा, वे ऑफ यूजिंग, इजीनेस इन यूजिंग, दैट इज यूजेबिलिटी. Portability, you are migrating your system from one environment to another environment. आप अपने सिस्टम को एक एनवायरनमेंट से या एक सेटअप से दूसरे सेटअप में ले जा रहे हैं, दूसरे सेटअप में इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज पोर्टेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी मींस कि सिस्टम का मेंटेन करना, सिस्टम का अपग्रेडेशन, सिस्टम में अपडेशन, ये सब मेंटेनेबिलिटी. तो ये सारी रिक्वायरमेंट किस में आती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में आती है. So all these are non-functional requirements. Now we will talk about requirement elicitation techniques. So first one is interviews. Interview का meaning हो गया कि we are interacting face to face. We are interacting with client. We are asking some questions. Client is giving some answers. So that is interview. जैसे normal interview होता है, questions and answer का session होता है. In the same way we can say interview भी जो अब हम requirement elicitation की बात करते हैं तो उसमें भी interview भी का मीनिंग भी यही है कि हम कैसे क्वेश्चन पूछें और कैसे रेलेवेंट आंसर और सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें मिले. सेटिस्फैक्टरी आंसर मींस कि मैंने कोई क्वेरी पुट की तो आई एम गेटिंग द रिलेवेंट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी. तो उससे क्या होगा कि हम यूजर की रिक्वायरमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट को इजीली गेट कर पाएंगे. अब कैटेगरीज ऑफ इंटरव्यूज भी होती हैं. इंटरव्यू की कुछ कैटेगरी होती हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और वी कैन से क्लोज इंटरव्यू. तो व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? वेयर एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन टुगेदर इज डिसाइडेड इन एडवांस. व्हाट क्वेश्चन आई विल आस्क, मैं ये एडवांस में डिसाइड कर लूंगा. सपोज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार आप जॉब के लिए अप्लाई करें और आपके पास मेल आ जाता है कि दिस विल बी योर वर्क प्रोफाइल, दिस विल बी योर सीटीसी, दिस विल बी फॉर नोटिस पीरियड, दिस विल बी जॉब लोकेशन, this will be the platform, this is requirement, this language requirement, this database requirement, okay, this is scripting language requirement.
सो वोट एवर सारी रिलेटेड चीजें आ गई। अब आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो इन चीजों को डिसाइड करके जाओगे। आपसे बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू जावा पे होगा, जावा के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे, तो यू विल प्रिपेयर जावा फॉर दैट एंड विल गिव आंसर फॉर सिमिलर क्वेश्चंस। So this will be structured interview, or we can say closed interview. If you are asked to write the definition of closed interview, then you have to write the same thing. If you are asked to write the definition of structured interviews, then you have to write the same definition. So structured and closed interview. Follow pattern and matter of discussion firmly. तो पैटर्न एंड मैटर ऑफ डिस्कशन अभी मैंने आपको बताया कि मैटर ऑफ डिस्कशन क्या होगा, आपको पहले से बता दिया गया कि योर इंटरव्यू इज ऑन जावा, your interview is on DBA database administrator or any database like Oracle SQL, या आपका इंटरव्यू किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, आपका इंटरव्यू नेटवर्किंग पे, तो आपको पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया। अब आपको पैटर्न भी पता चल गया। पैटर्न मींस फर्स्ट यू विल गो फॉर कंपनी प्रेमिसेस, you will go for organization premises, and you have to attend a written test. After that there will be a technical round, after that there will be HR round. So all the patterns has been decided in advance. So that is structured interview. What is non-structured interview? Non-structured means, suppose you got a call that there is a position for software developer. Now you are going. They will ask you questions from you. They will put their queries and will choose that on which platform you are suitable. You are suitable in Java. You are suitable in .NET. You are suitable in your database. You are suitable in Oracle. So they will decide. Or they can ask some aptitude test, they can ask some for some reasoning test, and after evaluating the result of that particular aptitude or reasoning test, they will decide कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे रखना है। तो दैट विल बी नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब देखिए इसको हम प्रोजेक्ट की फॉर्म में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट की फॉर्म में क्या होगा कि क्लाइंट को हमने बता दिया हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स का हमें अब इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू मीन्स उनसे हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमने उन्हें पहले से ही बता दिया। जैसे एक क्लाइंट है, फिर क्लाइंट का भी क्लाइंट है, दैट मींस एंड क्लाइंट हो गया। तो एक क्लाइंट को हमने बता दिया कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे कि आपको क्या डेवलप कराना है, क्या फंक्शंस डेवलप कराने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्लाइंट में और एंड क्लाइंट में। तो क्लाइंट से जब कम्युनिकेट किया तो क्लाइंट ने डेवलपर से कहा कि मैं जो क्वेश्चन मेरे जो मैं आंसर दूंगा आपको उसी को मेरे सॉफ्टवेयर में पुट करना है। दैट फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एंड क्लाइंट ने कहा कि जो मैं आंसर दूंगा आपको उन्हीं रिक्वायरमेंट को मेरे प्रोजेक्ट में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब या तो डेवलपर बिल्कुल फेयर वर्क करे, अगर फेयर वर्क नहीं करता है तो उसको किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा या एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटरव्यू में बाइस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करना या एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फेवर दिखाना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड या क्लोज इंटरव्यू में बायस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे आप जनरल इंटरव्यू की फॉर्म पूछो, आपको प्रीवियसली बता दिया कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वी कैन से कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया गया, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के गिने चुने क्वेश्चन आप तैयार करके ले जाओ और आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर दो। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बायस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। व्हाइल वी विल टॉक नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू में एडवांस में कुछ भी नहीं बताया जाता। और यहाँ पे जो आपका देखिए लास्ट वाली लाइन में आपका लिखा हुआ है कि इट इज लेस बाइस। लेस बाइस का मीन्स यहाँ पे जो आपका होगा ना सब फेवर या जिसको हम कहेंगे पक्षपात, उसके चांसेस कम रहते हैं। जब आपको बताया नहीं गया कि कौन आपका इंटरव्यू लेगा, हु विल टेक योर इंटरव्यू एंड व्हाट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, तो ये सारी चीजें जब आपको पहले से नहीं पता होंगी तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी इंटरव्यू ले सकता है, एनी नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं, आपको कोई भी पोजीशन डेपुट हो सकती है। तो यहाँ पे वाइस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो दिस विल बी स्ट्रक्चर इंटरव्यू एंड नॉन स्ट्रक्चर। अब इंटरव्यू की कुछ अदर कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे एक ओरल इंटरव्यू हो गया, ओरल मींस वर्बली ऐसे ही पूछ लिया। एक रिटन इंटरव्यू हो गया, आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए और उनका आपसे, देखो ओरल क्या होगा, जैसे आप लोगों का वाइवा होता है, रिटन हो गया आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इन द सेम वे रिटन मींस क्लाइंट को कुछ क्वेश्चन दे दिए, क्लाइंट को कहा कि आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रिटन में लिख के और सबमिट करो। ओरल की जनरली बातचीत कर ली ऐसे कि ठीक है ये फंक्शन ऐड कर देते हैं या ये फंक्शन रिमूव कर देते हैं। वन टू वन इंटरव्यू की अब यहाँ पे क्या है कि हमने पहले क्लाइंट को बुलाया, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ले ली, एक पर्सन का इंटरव्यू कर लिया, फिर दूसरे पर्सन को बुलाया, एंड क्लाइंट को बुलाया, उसकी रिक्वायरमेंट ले ली, या कोई दूसरा स्टेक होल्डर जो उसमें इन्वॉल्व है
उसकी रिक्वायरमेंट ले ली। तो दिस विल बी योर 1-to-1 इंटरव्यू। नाउ सेकंड इज ग्रुप इंटरव्यू। सो व्हाट इज ग्रुप इंटरव्यू? कि हम एक ग्रुप में इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना ग्रुप डिस्कशन होता है जिसको हम जीडी बोलते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन के? अच्छा चलो आप ही लोग बताइए क्या बेनिफिट होते हैं ग्रुप डिस्कशन। अभी तक मैंने आपको जो बताया इसमें कोई डाउट हो तो वो बताइए, बाकी अदरवाइज ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। आप बताइए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन? सर ज्यादा से ज्यादा आइडिया मिलेंगे। गुड। और कौशिक कुमार, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये स्किल इंप्रूव होंगे, बट अब अभी हम बात कर रहे हैं आउटकम के रेफरेंस में, क्योंकि हम हमारा क्लाइंट कैसे हमारी बातों को सुन रहा है या कैसे अपनी बातों को रिस्पॉन्स कैसे अपनी बातों को पुट कर रहा है। तो अभी हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि कंक्लूजन क्या आ रहा है। ठीक है कौशिक। तो देखिए सर दूसरे की मेंटेलिटी जान पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कैसा इंसान है वो। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यस सर। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ओके, आई गॉट सम मोर आंसर। हर्ष श्रीवास्तव, कॉन्फिडेंस बूस्टर। राहुल कुमार, प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो जाएगी। हाँ ये ठीक है। हिमांशु पटेल, सबके आइडिया से मिलकर एक बेटर आइडिया मिल सकेगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर कुछ पॉइंट हम निकाल सकते हैं, जैसे एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट सर थिंग। सर हाँ सर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा सर सबका, अगर सब जीडी हो। बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और जो सोल्यूशन देखिए, और अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो मुझे जो सोल्यूशन देना था वो मेरे पास था, बट अभी आप लोगों ने कुछ और सोल्यूशन दिए। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग जो सोल्यूशन निकालेंगे इसका ग्रुप इंटरव्यू का, वो बेटर सोल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, अभी भी हमने ग्रुप ग्रुप डिस्कशन किया ना, तो अब इसके क्या बेनिफिट हुए, मैं आपको कोई एक सोल्यूशन बताता लेकिन आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल मुझे सोल्यूशन मिले, अब उनको मर्ज करके हम 1, 2 और 3 सोल्यूशन बताएंगे, तो ये बेनिफिट हो गया। और देखिए सिमिलर टाइम में मैं भी आपको वो सेम टाइम में चीजें एक्सप्लेन करता, लेकिन ये सिमिलर टाइम में मुझे मल्टीपल चीजें मिल गई। फिर या तो हमारा हाईलाइट द पोटेंशियल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल कैंडिडेट को हाईलाइट करने की, तो वी कैन से कि जिस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रेलेवेंट है, जिस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, उस क्लाइंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ग्रुप डिस्कशन के मीडियम। तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि देखिए, डेवलपर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो ग्रुप डिस्कशन होगा तो इट इज पॉसिबिलिटी कि उस ग्रुप में के किसी भी मेंबर के पास उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो एक बेनिफिट ये हो गया कि मिसिंग सोल्यूशन या मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड थिंग, जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, तो जब सारे लोग मींस ऑल स्टेक होल्डर्स एक साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे और भी रिक्वायरमेंट जो मिसिंग है वो रिक्वायरमेंट का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एम्बिग्यूटी मींस अगर सभी की कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जिनके सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनका एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। टाइम सेविंग होगा, न्यू आइडियाज मिल जाएंगे और प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज बेनिफिट ऑफ ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। सो देखिए डिफरेंस ब्रेन स्टॉर्मिंग और ग्रुप इंटरव्यू में ये कि हमने ग्रुप इंटरव्यू में चीजों को डिस्कस कर लिया, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन इसका डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन सबको विजिबल होता है। विजिबल मींस कि सबको उस डॉक्यूमेंटेशन, एवरीवन कैन रिव्यू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कि हाँ ये वही चीजें हैं जो ग्रुप में डिस्कस हुई थी, जो हमने डिस्कस की थी, जिसको हम जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि हमने जो मीटिंग की, जिस टास्क से रिलेटेड मीटिंग की, दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, अब वो सर्कुलेट हो गया, अब वो पब्लिश हो गया।
ठीक है, so this is brainstorming similar to group discussion, but documentation prepare हो जाता और and everyone would be able to see all the ideas, all the documents. Okay, in this we are saying कि a detailed report of all is prepared which consists list of requirements and their priority. तो हमने क्या किया कि जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी सबकी एक लिस्ट बना ली कि दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, और जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी उसकी उसको हमने यूनिक कर लिया। तो जब सबकी लिस्ट बन गई, अब उसमें किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है, किस रिक्वायरमेंट को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इसके अकॉर्डिंग हमने लिस्ट बना ली। तो अब जब लिस्ट बन जाती है इसके अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लेते हैं कि इन ग्रुप मीटिंग दिस इज डिसाइडेड दैट दिस टास्क विल बी डन ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस टास्क विल बी डन ऑन सेकंड प्रायोरिटी। बट देखिए जब ग्रुप लार्ज ग्रुप है और मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए एक सीनियर पर्सन या ट्रेंड, जिसको कह सकते हैं आप मैनेजर पोजीशन कह सकते हैं या जनरल मैनेजर कह सकते हैं, टीम लीडर कह सकते हैं। देखिए टीम लीडर भी कौन टीम लीडर बनता है, जो सीनियर होता है अपनी टीम में सबसे ज्यादा, या जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, जिससे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए टीम में उसको वह हैंडल कर सके। ठीक है, तो इन द सेम वे जब ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक हमें सीनियर पर्सन की भी नीड होती है। जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो मीटिंग हो रही है पार्टिसिपेंट्स की, उस मीटिंग में इफ एनी ऑफ पार्टिसिपेंट हैज एनी इशू देन ही कैन हैंडल, he can tackle that particular issue. So this is brainstorming. Next is FAST. It stands for Facilitated Application Specification Technique. Due to team-oriented nature of this approach, it is somewhere similar to brainstorming. So team-oriented means कि यहाँ पे भी number of participants involved होते हैं meeting में. This is not a single member meeting. This is the meeting of number of participants. तो जब number of participants हमारे brainstorming में भी involved थे, number of participants हमारे FAST में भी involved हैं, तो we can say this is similar to brainstorming. Now, the main motive of this meeting is to fill the gap between the customer and developer. Customer और developer के बीच में कुछ conflict भी हो सकते हैं. Conflict means general conflict, requirement related conflict, lack of information, lack of awareness about requirement. So how we can fill that particular lack? अब उस lack को कैसे fill किया जाए? तो उस lack के लिए हमें क्या होगा? We can prepare a fast. But यहाँ पे brainstorming से difference ये आ जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने पीपल्स थे उन लोगों ने जो कहा उसकी एक लिस्ट तैयार हुई। यहाँ पे क्या है कि ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू प्रिपेयर हिज और हर ऑन लिस्ट। जैसे 10 पार्टिसिपेंट हैं तो विच वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वन पार्टिसिपेंट, सेकंड पार्टिसिपेंट, थर्ड पार्टिसिपेंट, इसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी लिस्ट हैं वो सारी लिस्ट मर्ज की जाएंगी, जो रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, उसको रिमूव किया जाएगा। और जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे एक लिस्ट तैयार हुई, उसमें देखा कि 4 क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समवेयर सिमिलर हैं, तो उसमें क्या हुआ कि उनका एक अलग क्लस्टर बना दिया, उनकी एक अलग टीम बन गई। इसी सिमिलर वे में दूसरी रिक्वायरमेंट की अलग टीम बन गई। अब जब अलग अलग टीम बन गई तो जो हमारी 20, 30, 50 रिक्वायरमेंट थी उसको हमने अब 3 to 4 टीम में डिवाइड कर लिया। अब उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली और उसके बेसिस पे हमने टास्क को करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है QFD. So it stands for Quality Function Deployment. तो देखिए अब क्या हो गया कि ये तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सब मीटिंग होगी। अब हमें देखना है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसके प्रोजेक्ट को एनहांस करें, उसके प्रोजेक्ट में फंक्शन सेट करें। तो ये किसके अंदर आएगा? QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे डिप्लॉय करेंगे, हम अपनी क्वालिटी को कैसे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर। ओके, अब क्वालिटी की टर्म्स में बात करते हैं तो देखिए कस्टमर की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल क्या होगा कि ठीक है मुझे एक एप्लीकेशन बनवाना है, उस एप्लीकेशन में मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। नॉर्मली जैसे रिक्वायरमेंट हो गई वी आर टेकिंग दिस क्लास, नॉर्मली क्या है कि मैं लेक्चर डिलीवर करूं, आप लोग लेक्चर को अटेंड करें, ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो गई।
एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट हो गई कि कुछ जैसे चीजें जो हमारी स्लाइड में नहीं है उन चीजों को भी मैं एक्सप्लेन करूं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट कस्टमर ने नहीं कहा, कस्टमर ने अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा, कस्टमर ने ये नहीं कहा कि हम इसको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मेरा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज कोई और एक्सेस ना करे, तो उसके लिए आप कैसे यूजर नेम डिसाइड करेंगे, कैसे पासवर्ड डिसाइड करेंगे, पासवर्ड में भी कोई क्राइटेरिया होगा, यूजर नेम में भी कोई क्राइटेरिया होगा, इन सब चीजों को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। जैसे आप लोग हम क्लास कर रहे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग उसका आंसर करें। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इससे रिलेटेड आपके जो हमारे इस कंटेंट स्लाइड में क्वेश्चन या स्लाइड में कंटेंट नहीं, उससे एडिशनल कंटेंट भी कुछ डिस्कस किया जाए। तो दिस इज एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। तो एक तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होगी, उसको फिलफिल करना, दूसरा एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट होगी, उसको फिलफिल करना। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट की कुछ ऐसी चीज जो कस्टमर ने डिमांड नहीं की, बट हम अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, आप यू आर परचेजिंग समथिंग और यू विल गेट समथिंग फ्री विद दैट, तो एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने ऐड देखा होगा, ऐड पे लिखा रहता है कि दिस वन इज फ्री विद दिस आइटम, तो वहां पे क्या होता है कि एक्साइटिंग लेवल कस्टमर का बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। तो दीज आर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर इन। तो दिस इज एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट, दीज आर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर, जिनको यूजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे आप कहीं पे कुछ परचेजिंग के लिए जाते हैं, आपने एक पर्टिकुलर आइटम परचेज किया और आपको वो शॉपकीपर दूसरा आइटम उसके साथ फ्री में प्रोवाइड कर देता है। तो जब आपने वो पर्टिकुलर आइटम परचेज किया तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें ये चीज फ्री में मिलेगी, तो एट द टाइम यू विल बी एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने जो फीचर्स बताए वो फीचर्स तो पुट कर दिए, तो उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स ने फिट कर दिए, जैसे एनिमेशन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, थीम्स, कुछ थीम्स फ्री में प्रोवाइड करा दी। तो ये क्या होगी, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। इससे क्या होगा, कस्टमर मोर सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। ये आपका टॉपिक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का टॉपिक आज फिनिश होता है। और अभी इसमें कोई क्वेरी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मैं इसको रिपीट कर लूं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। बताइए कुछ, अगर इसमें कुछ पूछना है आपको, तो अदरवाइज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, अभिषेक अग्रवाल, अमन कुमार, अर्पित वर्मा। बताइए बेटा, अगर कोई इशू हो इसमें तो। और लोग, बाकी जितने भी लोग हैं, यस सर। कोई इशू, या हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। सर नया स्टार्ट करिए।
our next topic is requirement analysis step. अभी हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, रिक्वायरमेंट को कैसे लेते हैं। अब एनालिसिस कैसे करते हैं। हमारे साथ क्लाइंट की मीटिंग कंप्लीट हो गई, क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट ले ली, अब हमें उसको एनालिसिस करना है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, अपनी टीम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने डेवलपमेंट कल्चर के अकॉर्डिंग हमें कैसे इसको डेवलप करना है, तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए, एक होता है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम का हम यूज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में हमें ये पता लगता है कि हम कैसे फ्लो करेंगे फ्रॉम 0% to 100%। currently we are at 0% and we are moving from 0% to 100%। तो हम कैसे फॉलो करेंगे इस चीज को। डायरेक्ट हम 50% पे पहुंचेंगे या पहले 20% टास्क हमें कंप्लीट करना है। तो ऑल द वेज वी विल गेट, ये क्या होगा आपका DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। तो अब रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, और रिक्वायरमेंट को कैसे एनालिसिस करेंगे हम, डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम, सेकंड इज डेवलप प्रोटोटाइप, थर्ड मॉडल द रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। तो ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम। कंटेक्स्ट डायग्राम का मीनिंग ये होगा कि आप कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को रिलेट करेंगे आउटसाइडर इन्वायरमेंट से। आउटसाइडर इन्वायरमेंट मीन्स कि सपोज आप एक स्टूडेंट है, मेकिंग अ डायग्राम हियर। अभी मैं बस इसको बता रहा हूँ, ये आपका जो फर्स्ट पेज है, दिस इज अ स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट का आपका पार्ट हो गया। अब इस स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स हमें चाहिए। देखिए, ये आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको स्टूडेंट, ये क्लाइंट ने आपसे कहा कि मुझे स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट बना के दो। क्लाइंट ने कहा स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट बना के दो। अब इस स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट को हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें आउटसाइडर इन्वायरमेंट से कुछ चीजों को लेना होगा। क्या लेना होगा, जैसे हमने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लिया, स्टूडेंट की फर्स्ट मिड में कितनी परफॉर्मेंस थी, स्टूडेंट की सेकंड मिड में, ऐसे ही रिजल्ट प्रिपेयर होता है ना आपका भी, सेकंड मिड में कैसी परफॉर्मेंस थी, फाइनल मिड एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस थी। तो हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ले ली। उसके बाद क्या करा, स्टूडेंट के फर्स्ट मिड के मार्क्स, सेकंड मिड के मार्क्स हमने डिस्प्ले कर दिए। फिर स्टूडेंट की हमने मार्क्स का एवरेज निकाल लिया। मार्क्स का एवरेज निकालने के बाद स्टूडेंट का हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया, फिर उसकी मार्क्सशीट प्रिंट की। तो ये सारे स्टेप हो गए। जब फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, तब हम अचीव करते हैं इसको, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट, यानी स्टूडेंट के रिजल्ट को अचीव करते हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम बाहरी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट रहे, हम बाहरी इन्वायरमेंट से हमने चीजों को कलेक्ट किया। तो कंटेक्स्ट डायग्राम भी होता है कि मेरा बाहरी इन्वायरमेंट से क्या क्या चीजों को मुझे लेना है, क्या बाउंड्रीज हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम नहीं करना, तो क्या बाउंड्रीज रहेंगी, क्या लिमिटेशंस रहेंगी, और कैसे जो आपके एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज कैसे आपके इस सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे, कैसे इस सिस्टम से अटैच रहेंगे। दिस इज कंटेक्स्ट मैनेजमेंट डायग्राम, दिस इज कंटेक्स्ट डायग्राम। मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बहुत सिंपल डायग्राम है। सिंपल कैसे है कि ये डिफाइन करता है कि इंटरफेस आपका कैसा रहेगा। जैसे रिजल्ट आप लोग देखते हो, वो रिजल्ट आपको कैसा दिखता है, आपको ग्रेड दिखता है, आपको अपने फाइनल मार्क्स दिखते हैं, आपको मिड के मार्क्स दिखते हैं, आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिखते हैं या नहीं दिखते, तो कैसा आपका इंटरफेस रहेगा, तो वो डिसाइड हो जाता है। दूसरा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसकी बाउंड्रीज कैसी रहेंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसका रिलेशन कैसा रहेगा। एक्सटर्नल मीन्स कि जो फाइनल रिजल्ट आपका बनाया, जो रिजल्ट बनाया, उसमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया, किन किन चीजों का एवेल्युएशन किया। एक तो ये हो गया। और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि जो सिस्टम के बाहर, जैसे कि रिजल्ट मैनेजमेंट एक सिस्टम हो गया आपका, उसके बाहर जो एंटिटीज हैं वो आपके सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वो आपके सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये आपका कंटेक्स्ट डायग्राम हो गया। तो वी विल सी ऑल द 4 steps of requirement analysis. After that we will do DFD. We will also do some problems based on DFD. And I shared all the notes
अजाइल एंड स्क्रम। मैंने सारे आपको नोट शेयर कर दिए अजाइल और स्क्रम के, और रिमेनिंग पार्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और किसी भी इशू में आप कैन कॉन्टेक्ट करें। So this is for today's lecture, and we'll see you in next lecture. Okay, take care.